Hi everyone, my name is Akash, and in this video we are going to discuss most important problem on a stack, which is maximum area histogram. So the problem statement is find the largest rectangular area possible in a given histogram where the largest rectangle can be made of number of contiguous bar. So you will be given an array, right? You will be given an array, and the elements of that array will actually represent the height of the each bar in the histogram, right? So let's say for an example, I am given an array 6254 so each of the element in the array is representing the height of the each bar, right? So let's say this is representing the height 6, this is representing height 2, this is representing height 5, this is representing height 4, this 5, this is 1, and this is 6, right? So the problem statement is actually I have to find the maximum rectangular area which is possible out of this histogram, right? There is one more line. For simplicity, assume that all bars have same width and the width is 1 unit, right? So we will consider that width of the each bar is 1, right? Great. So if I look at this 6 only, if I look at this 6 only, so the area that I'll be getting is only 6, right? This will be the area, 6 into 1, right? But if I look at this 2, so this 2 can be actually expanded to the left and to the right as well till here, right? So the maximum area that can be generated from this 2 will be this. So which is nothing but, so if I talk about this, then I'll be getting 6 into 1 6. If I talk about this, so I'll be getting 2 is the height of each bar, but the width will be 5, 1 2 3 4 5, right? So the area will be 2 into 5, which is 10, right? Now let's come to this 5. So for this 5, the only area that I'll be getting is only 5, because I cannot expand this 5 to the left. Similar pattern may I cannot expand this 5 to the right, right? Great. So the area for this 5 bar will be again 5 into 1, 5. Now let's come to this 4. So this 4 can be expanded to the left as well as to the right, but only by 1 bar, right? So the area that I'll be generating from this 4 will be this, right? So the area will be 4 into 3, which is 12. So 1 2 3, 3 is the width and the 4 is the height. So this actually bar can be expanded to the left as well as to the right. So the area that I'll be getting is 12, right? Now let's come to this 5 again. So this 5 cannot be extended to the left. In similar pattern, this 5 cannot be expanded to the right, right? So again, I'll be getting 5 into 1, 5, right? Now let's come to this 1. So if I am at this 1, so this 1 can be expanded to this part and to this part. So the area that I'll be getting from here will be this, right? So 1 2 3 4 5 6 7, so 7 into 1 will be the area, right? Now let's come to this 6. Again, 6 cannot be expanded to the left. In similar pattern, 6 cannot be expanded to the right. So the maximum area that can be generated from this bar is 6 into 1, which is nothing but 6. Now I have to return the maximum area which is actually possible out of this complete histogram, right? So the maximum area that I'm getting is 4 into 3 12, right? So 12 will be the answer. So that is why the output of this particular problem is coming out as 12. So the problem is very interesting, and there can be multiple solutions to this problem again, but again we have to look for the solution that we have already seen, right? जो पैटर्न्स हम लोगों ने अभी तक देखे हैं NGEL NGER, वो पैटर्न्स हम लोग को यहाँ पे लगाने हैं, राइट? सो अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान से देखो मैं ब्रूट फोर्स अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है? बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट द ब्रूट फोर्स अप्रोच, राइट? देखो यहाँ पे इसकी हाइट है 6, यहाँ पे इसकी हाइट है 2, यहाँ पे इसकी हाइट है 5, यहाँ पे इसकी हाइट है 4, यहाँ पे 5 1 एंड यहाँ पे अगेन 6. अब अगर आप ध्यान से देखो, लेट्स से मैं इस 4 की बात करता हूँ, मैं इस 4 पे खड़ा हूँ, ठीक है? लेट्स से मैं इस 4 पे हूँ, राइट? अब अगर तुम ध्यान से देखो, मैं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस 4 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अब कैसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है दैट आई विल टॉक अबाउट, राइट? ठीक है, तो बात करते हैं इस 4 की. अब इस 4 की अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है? सो दीज आर द इंडिसेस फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस 4, सी व्हाट इज द नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ दिस एलिमेंट. इस 4 का नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट कौन है?
2 है, उसका इंडेक्स क्या है, 1 है उसका इंडेक्स, राइट। मैं ध्यान रखना, मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट का इंडेक्स लिख रहा हूँ हर एक एलिमेंट के लिए, राइट। ऑल्सो आई एम राइटिंग नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट वाला इंडेक्स फॉर दिस 4 मैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट का भी इंडेक्स लिख रहा हूं। तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन है इस 4 के राइट में सबसे, 5 मींस 1 एलिमेंट है बट उसका इंडेक्स कितना है, 5। ग्रेट। नाउ आई हैव सम इंफॉर्मेशन, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्चुअली सबट्रैक्ट दिस 5 minus 1 and -1 additionally. So this 5 is the right index, this 1 is the left index, then -1 is additionally, because I have to get this width. But this is actually giving me the difference between these two numbers, right? This is giving me the difference between these two numbers. But मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, width चाहिए। तो width मेरे को कैसे मिलेगी, 5 minus 1 and additionally मेरे को -1 करना पड़ेगा। So this will give me 3. And now this 3 can be multiplied with the number जहाँ पे मैं already present हूँ, right? So I'll be getting 4. अब देखो यार, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि फॉर दिस प्रॉब्लम वी हैव टू एक्चुअली फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट इंडेक्स फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट, राइट। सो देखो यार, पिछली जो प्रॉब्लम थी नेक्स्ट स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, वहाँ पे मैंने आप लोग को ये सिखाया कि कैसे हम किसी भी एक एरे के फॉर्म में नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, या वहाँ पे हमने बेसिकली नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द लेफ्ट की बात की थी। तो वहाँ पे मैंने आपको इंडेक्स मेंटेन करना सिखाया, उसका कोड भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया था NSEL नाम का, ठीक है, सॉरी NGEL नाम का, राइट। सो NGEL में मैंने आपको क्या सिखाया, एक एरे निकालना सिखाया V, जिसके अंदर में नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द लेफ्ट का इंडेक्स जो है होल्ड करके रखता है। लेट्स से -1, कहीं पे 5 आ गया, कहीं पे लेट्स से 2, इस तरीके से, राइट। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सेम प्रॉब्लम करना है, सेम टारगेट मेरे को अचीव करना है, बट यहाँ पे मैं 2 एरे डिफाइन करूंगा, एक V1 एक V2। सो V1 विल बी एक्टिंग फॉर नॉट NGEL नाउ, NSEL, एंड V2 विल बी एक्टिंग फॉर NSER, right? So first of all, let's consider this problem and let's run a test case, right? So let's run a test case for this problem. Great. So this is my problem statement. So first of all, I'll be iterating from from left to right and I will maintain NSEL array, right? जिसके अंदर मैं indices को maintain करूँगा, ठीक है। So this is my NSEL array. Let's call it as V, और you can say it as NSEL index array, right? So NSEL index भी आप इसको बोल सकते हो। So when I'll be on 6, ठीक है। अब देखो यार, मेरे को आई थिंक मुझे नहीं सिखाने की जरूरत है कि NSEL का इंडेक्स कैसे निकालेंगे। So अगर आपको प्रॉब्लम वो वाली क्लियर है, राइट, स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, तो मैंने वहाँ पे इंडेक्स एरे आपको निकालना सिखाया है, बट वहाँ पे मैंने NGER के लिए सिखाया है। बट आई थिंक उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, राइट। आपको लूप की डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर आपने सारी प्रॉब्लम्स को देखा है तो आपको लूप की डायरेक्शन चेंज करनी होगी, और आपको ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने क्लोजली सारी प्रॉब्लम्स को देखा है, that is fine. Now what I will do is I will actually maintain the next smaller element to the left index array for each of the element. So who is the next smaller element to the left for this 6? -1. Who is the next smaller element to the left for this 2? -1. Who is the next smaller element for this 5? इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे हम, 1 इंडेक्स पे मेरे पास इस 5 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट रखा है टू द राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस 4। इस 4 के लिए इसके लेफ्ट में कौन सा नियरेस्ट एलिमेंट है टू द लेफ्ट? 2 है। किसके इंडेक्स पे है वो? 1 इंडेक्स पे, राइट। अगेन वी विल टॉक अबाउट दिस 5। इस 5 के लिए लेफ्ट में इसके नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन है? उसका इंडेक्स क्या है? 3, राइट, क्योंकि 4 है ना, तो उसका इंडेक्स 3 है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दिस 1। सो इस 1 के लिए मेरे पास, इस 1 के लिए लेफ्ट साइड में नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? कुछ नहीं है, -1 रखेंगे इसके लिए, राइट। नाउ अगेन फॉर दिस 6, नियरेस्ट नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट कौन है? 1, तो उसका इंडेक्स क्या है? 5। सो ये मेरे पास मेंटेन कर लिया मैंने NSEL इंडेक्स एरे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द NSER, ठीक है, NSER एरे की बात करते हैं, ठीक है। सो let's try to do this. Perfect. So who is the next smaller element to the right of this 6? कौन से इंडेक्स पे है? 2 एरे है, बट 2 एलिमेंट है, किस इंडेक्स पे? 1 इंडेक्स पे। नाउ इस 2 की अगर बात करूँ तो इस 2 के राइट साइड में कौन सा स्मॉलर एलिमेंट है? ये 5 वाला है, राइट। सो 5 में मेंटेन करके रखूंगा, मैं इस 5 को मेंटेन करूंगा, राइट। नाउ अगेन
हु इज द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट फॉर दिस 5. सो 4 एलिमेंट है, उसका इंडेक्स क्या है 3. सो आई विल बी मेंटेनिंग 3. नाउ अगेन फॉर दिस 5 हु इज द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट, अगेन 5. सो आई विल बी मेंटेनिंग 5. सॉरी मुझे 4 के लिए करना है, ठीक है. 4 के लिए भी मेरे पास 5 ही होगा, राइट. नाउ हु इज द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट फॉर दिस 5, अगेन इंडेक्स 5, राइट, क्योंकि 1 एलिमेंट है ना तो इंडेक्स 5. नाउ अगेन हु इज द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू दिस 1. अब देखो कोई भी नहीं है तो मैं -1 नहीं रखूंगा इस बार मैं n को रखूंगा. n क्या होगा मेरे पास 7, ठीक है, तो मैं 7 को रखूंगा. नाउ हु इज द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू दिस 6. इस 6 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन है राइट में इसके, कोई भी नहीं है तो 7, ठीक है. तो ये मेरे पास NSER मैंने इंडेक्स एरे मेंटेन कर लिया है. नाउ आई हैव NSEL इंडेक्स एरे एंड नाउ NSER इंडेक्स एरे, राइट. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू जस्ट रन अ लूप. मेरे को एक लूप रन करना है फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 0 टू n-1, and for each of the value what I have to do is ARR of I into ARR of I will give me this 6 2 5 4 5 1 6, right. इसका मुझे मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है, NSE R of I minus NSER of L of I minus 1. मुझे इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट. NSER of I minus NSEL of I minus 1, right, and this will be stored in some another answer array. ठीक है, लेट्स से आंसर एरे मेरे पास एक होगा जिसके पास मैं हर एक एलिमेंट के लिए बेसिकली एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ. सो व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया विच इज पॉसिबल फॉर दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया विच इज पॉसिबल फॉर दिस 2, नाउ विच इज मैक्सिमम एरिया फॉर पॉसिबल फॉर दिस 5. सो फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट आई एम मेंटेनिंग इन माई आंसर एरे एरिया. नाउ after doing this particular thing I will actually calculate the max out of this array. ठीक है, ये मेरे पास आंसर एरे मेंटेन हो जाएगा. कैसे मेंटेन हो जाएगा, देखो ARR of I कितना है 6. नाउ 1 minus -1 will give me 2 and 2 minus 1 will give me 1. So 1 into 6 will give me 6, right. Now let's come to the next index. So 5 minus -1 which is 6, 6 minus 1 into 2 which will give me 12, right. Again at this point 3 minus 1 will give me 2 and 2 minus 1, 3 minus 1 will give me 2, 2 minus 1 will give me 1 and 1 into 5 which will be 5, right. Again for this 4, 5 minus 1 will give me 3 and 3 minus 1, sorry 5 minus 1 will give me 4, 4 minus 1 will give me 3 and 3 into 4 will be 12, right. And in the similar pattern we'll be calculating for each of the element, right. So we'll be storing 5 for this element, then for this element we'll be storing 7 and then for the last element again we'll be storing 6. But now I will again run a loop from 0th index to the last index and then I will calculate the maximum of this array and I'll be getting 12 as my answer, right. So this is all about the problem. Now let's directly jump to the code. So I have this code in C++. So it's a very simple concept, if you are familiar with the stock span problem, if you have seen the solution for a stock span problem, there also we were calculating the next greater element index for each of the element, right. But here we'll be calculating the index for next smaller element to the left separately and next smaller element to the right separately. So we'll be maintaining two arrays first, right. So actually this is the function which is actually calculating the next smaller element to the left. So it's the problem statement एकदम clear है यार. स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ेगी, राइट. अगर मैं इसको फिर से यहाँ पे समझाना शुरू करूँ ना तो दिस वीडियो विल बी मोर देन ऑफ 1 hour, राइट. सो आपको स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी. वहाँ पे मैंने बहुत पेशेंस के साथ इस चीज़ को समझाया, राइट. परफेक्ट. सो दिस will actually return me the next smaller element to the left का index for each of the element, right. Again there is one more function which is actually calculating the next smaller element to the right index array, right, for each of the element. After this देखो ध्यान से, मैं NSEL इंडेक्स को अलग से फैच कर रहा हूं जो कि NSEL नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया है इस एरे पे, और NSER इंडेक्स को मैं अलग से फैच कर रहा हूं. सो दिस विल गिव मी 2 arrays, राइट. दिस विल गिव मी 2 arrays, right. After having these 2 arrays what I am doing is आई एम मेंटेनिंग ऑल्सो आंसर एरे जिसके अंदर मैं फाइनल अपने हर एक सेल के लिए एरिया के स्टोर कर रहा हूँ, राइट.
कि मेरे पास इस 6 के कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे एरिया स्टोर होगा, इस 5 के कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे एरिया स्टोर होगा, इस 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे, इस 4 के कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे एरिया स्टोर होगा, राइट। तो मैंने इस आंसर एरे में मैं क्या करूँगा, इस आंसर एरे में क्या क्या करूँगा, देखो ARR को कर रहा हूँ NSER इंडेक्स I माइनस NSEL इंडेक्स I -1 इनटू द एलिमेंट, तो ये मेरे को एरिया देगा उस पर्टिकुलर सेल का, ठीक है, ग्रेट। साथ के साथ मैं मैक्सिमम भी फाइंड आउट करते जा रहा हूँ। सो इनिशियली मैंने क्या मान के रखा है, इंटीजर की मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमम एरिया मान के रखा है, राइट। अब देखो ऑब्वियसली हमें जो एरिया मिलने वाला है वो पॉजिटिव मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, राइट। तो इसलिए आप चाहे तो एरे के 0th एलिमेंट को मानते हैं वैसे तो मैक्सिमम स्टार्टिंग में जब हम मैक्सिमम निकालना सीखते हैं एक एरे का, बट वहाँ पे एरे में नेगेटिव इंडेक्सेस, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला है, राइट। सो मैं इसको इंटीजर मिनिमम मान के रख सकता हूँ। सो जैसे ही मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो मेरा मैक्स अपडेट हो जाएगा। तो जो भी मेरे पास इस कंप्लीट एरे का मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना, लेट्स से 12, सो वो 12 पे मैक्स मेरा अपडेट हो जाएगा और उसके बाद कभी फिर अपडेट नहीं होगा, बिकॉज सारे एलिमेंट्स फिर उसके अंदर छोटे होंगे, राइट। सो दिस इज हाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग माई मैक्स ऑफ दिस maximum area histogram problem. And finally this is my main function where I am calling a maximum area histogram function on this array and I am printing this answer, right. So this is a very simplest solution. Let me make you watch this in Java also. So in Java also I am actually maintaining an NACL function where I am calculating the NACL index array, right. So this is my array list, you can see that. Now again I am actually maintaining an NACR array. So this is actually returning me the NACR index, and in this basically function I am actually iterating over these two arrays and I am getting NACR.get I minus NACL.get I -1 into the current element, right. So this will give me the area and this area will get stored in this answer list. In similar pattern I am actually calculating the maximum of this array, right, and finally I am returning this. So this in the similar pattern I have the code in Python, so you can actually see the code in description को मैंने लिंक दे रखा है गिटहब का. सो अगेन सेम चीज़ है यार, NACL इंडेक्स मैंने एक मेंटेन किया जो कि मेरे को NACL इंडेक्स एरे मेरे को रिटर्न करेगा, एक NACR इंडेक्स मेरे को रिटर्न करेगा, ठीक है, और फाइनली एक मैक्सिमम एरिया हिस्टोग्राम है जहाँ पे मैं एक मैक्सिमम अपना निकाल रहा हूँ, राइट. सो आप जीरो भी रख सकते हो, मिनिमम भी मान के चल सकते हो, बिकॉज जीरो भी मेरे पास एरिया नहीं होने वाला है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैक्सिमम एरिया हिस्टोग्राम. सो आई होप यू हैव एंजॉयड. साथ के साथ क्यू की प्लेलिस्ट भी स्टार्ट हो चुकी है. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दीज प्रॉब्लम्स NACL NACR, सो यार मैं रिकमेंड करूँगा कि वो रिकमेंडेड प्रॉब्लम्स हैं आपको वो देखनी पड़ेंगी. देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, स्टैक स्पैन, स्टॉक स्पैन एंड योर this maximum area histogram and the upcoming videos as well on this stack, right. So that's all for this video and we'll be meeting in the next video, hoping that you have enjoyed the session, right. So bye bye for now.